لیکن جب ظلم بڑھے گا تو پھر یہاں پہ اسلام آباد میں، پھر پنجاب میں، پھر یہاں پہ بھی نوجوان وہی کام کریں گے جو پہلے انہوں نے ٹرائبل ایریاز میں کام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ٹرائبل ایریا میں جو لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت کی ان کو انہوں نے بھڑکایا تھا۔ اجازت نہیں دے سر حکومت کا کیا رویہ رہا آپ تک؟ حکومت تو جن کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو بندوق کی زبان بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو اس حکومت کا کیا، یہ تو حکومت تو جن کی ہے وہ ان کی تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کیا ہمارے وزیر اعظم کی اوقات ہے، بائیڈن نے آج تک کال نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ساری فورسز ہمارے تھرو وڈرا کرنی تھی، ہم مین ہمارا رول تھا اس کے اندر، اور کوئی نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کے سر پہ ایک ہاتھ ہی پھیر دیتے چھوٹا سا، ہم بیچارے کال کا انتظار کرتے کرتے ہمارا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر چیخے مارتا رہ گیا کہ کال نہیں کرتا وزیر اعظم کو، کہتا ہے کہ کبھی ٹیکنیکل فالٹ کے بہانے کرتا ہے۔ مطلب اندازہ کریے کہ ہم نے ان کی اتنی منتیں کی کہ انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے کہنا شروع کر دیا اور ٹیکنیکل فالٹ سے کال نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کلمہ لا الہ والی عمارت کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے اسلام آباد پریس کلب اور راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ، بلکہ پورے ملک میں جو صحافی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کا یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ احتجاج میں ملک کے نامور صحافی حامد میر صاحب، سید طلعت حسین، مطیع اللہ جان، ابصار عالم، نصرت جاوید، آسمہ شرازی، اسد طور اور نامور صحافی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اب آپ سن رہے ہیں، یہ نعرے مار رہے ہیں کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ تو یہ احتجاج ہو رہا ہے بالکل پارلیمنٹ کے سامنے ہی۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نامور صحافی جو یہاں پر موجود ہیں، حامد میر صاحب موجود ہیں، اسد طور موجود ہیں، آسمہ شرازی موجود ہیں، ان سے بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ اس نئے پاکستان میں کیوں برسر احتجاج ہے۔ ان لوگوں سے، اس حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو آخر مسئلہ ہے کیا کہ ان کو اپنے اپنے میڈیا چینل سے نکالے گئے ہیں۔ تو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ سر ہم ایشور یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس طرح کی پابندیاں دیکھیں گے، سختیاں دیکھیں گے تو آنے والی نسل کیا سوچے گی صحافت کے متعلق؟ جب میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں تو ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت بھی صحافیوں کو مار پڑتی تھی، کوڑے پڑتے تھے، تو میں تو نہیں گھبرایا، تو اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں۔ پاکستان میں صحافت کرنا بڑے حوصلے اور ہمت کا کام ہے، تو جس میں حوصلہ اور ہمت ہے وہ صحافت کرے، جس میں نہیں ہے وہ نہ کرے، بات ختم۔ سر یہ پاکستان حکومت کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ جیسے صحافیوں سے کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ جب میری صحافت شروع ہوئی تھی تو ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس وقت ہمارے جو بزرگ تھے، جو صحافی ہمارے سینئر تھے، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے تھے، تو ہم نے تو انہی کو دیکھا ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے جب آئین اور قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہو، قانون اور لا قانونیت ہو، جمہوریت اور آمریت کی لڑائی ہو، تو غیر جانبدار نہیں رہتا صحافی۔ صحیح ہے۔ یہ کوئی غیر جانبداری کوئی نظریہ نہیں ہے۔ صحافی جو ہے قانون اور لا قانونیت میں غیر جانبدار نہیں ہوگا، وہ قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حق اور باطل کی لڑائی میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جمہوریت اور آمریت کی لڑائی میں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صحیح۔ ہاں، لیکن اس کو کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، تو اس لیے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے بزرگوں کے خلاف تھے وہ آج ہمارے خلاف ہیں۔ آخری سوال، پاکستان میں ہم نے دیکھا زور کا چلتا ہے، جس کی لٹ اس کی بھینس، اگر انہوں نے بس زور زبردستی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو قانون لا رہے ہیں یہ نافذ کر دی تو یہ تو مشکل ہو جائے گا صحافیوں کے لیے، تو یہ ملک کس طرف چلے گا؟ تو بس پھر ہم جیسے لوگ تو یہی کہتے رہیں گے کہ پرامن جدوجہد کرو، پرامن جدوجہد کرو، لیکن جب ظلم بڑھے گا تو پھر یہاں پہ اسلام آباد میں، پھر پنجاب میں، پھر یہاں پہ بھی نوجوان وہی کام کریں گے جو پہلے انہوں نے ٹرائبل ایریاز میں کام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ٹرائبل ایریا میں جو لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت کی ان کو انہوں نے بھڑکایا تھا، وہ لوگ خود نہیں انہوں نے ہتھیار اٹھایا تھا، انہوں نے مجبور کیا۔ اب یہ وہی کام پنجاب میں کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی سب پاکستانی صحافیوں کی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیپ اٹھائیں؟ نہیں، پاکستانی صحافی تو قلم سے جدوجہد کرتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کا حشر دیکھ کے تو جو
बाकी नौजवान है वो तो उसी रास्ते पे चलेंगे ना, लाकानूनियत के रास्ते। पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने ही सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। जो कानून लाया जा रहा है मौजूदा मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके हवाले से, हमारे साथ हैं असदुर साहब। सर, ये जो सबसे पहले आप पूछेंगे जो वाक़या आपके साथ पेश आया था, उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी कैंडिडेट की थी और कुछ हमने सुना था कि हुकूमत इंक्वायरी करेगी, क्या हुआ अब तक? जो होना था कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जाहिर बात है, जब हमलावर सबको पता है कौन है, तो उनका ये हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, तो फिर क्या होना था? सर, इन हमलावरों को आपसे क्या मसला था, क्यों उन्होंने किया? वो चाहते हैं इस मुल्क में कोई खबर ना दे, इस मुल्क में मौत का सकूत हो, कोई आवाज़ ना निकले, कोई खबर ना निकले, और सिर्फ रावी चैन लिखे। अच्छा सर। और इस मुल्क में उनकी मर्ज़ी के यूट्यूबर्स बैठ के उनके गीत गाएं। खुद भी वो गाने वैसे काफ़ी बनाते हैं अब, और वो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनके गीत ही गाए। ठीक सर, इससे पहले इसके बाद कोई पैगाम उनकी तरफ से आया है कि आपने मज़ीद कुछ नहीं करना, आप मज़ीद खामोश रहें? पैगामात आते रहते हैं। अच्छा। पैगामात पहले भी आ रहे थे। अच्छा। अगर मैंने पैगामात पर ही अपनी सहाफ़त करनी होती तो मैं मार क्यों खाता? ठीक सर, अब ये जो बिल लाया जा रहा है वो तमाम सहाफ़ी जो मीडिया से एक्सक्लूड किए गए, निकाली गए, उनका यहाँ पे जमा होना है, तो इस कानून के मतलब बताइएगा, ये मौजूदा सहाफ़ियों और आने वाले सहाफ़त के तालिब इल्म के लिए किस हद तक ख़तरनाक है? देखिए, हमें सबसे बड़ी तो मायूसी ये है जो आपने आने वाले सहाफ़ी तालिब इल्मों के बारे में बात की है कि हम इतने मायूस हैं कि हमारे पास उनको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। हम उनको इनकरेज नहीं करते। अब मेरे से कोई बच्चे बच्चियाँ जो यंग ग्रेजुएट हैं वो अगर पूछ लें कि सर फील्ड में उन्होंने कहा तुम बेटे मत आए, कुछ और कर लें, मत आए, इस फील्ड में कुछ नहीं रखा, हमारा मसला है हम तो इतना अब और कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता हमारे बेटे बेटियाँ आएँ और वो इस फील्ड में आके हमारी वाली फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। ये फील्ड तो अब ये बदलना चाह रहे हैं पूरी तरह के, एक प्रोपेगेंडा की फील्ड बन गई। हम सहाफ़त ना हो इस मुल्क में, हो इस मुल्क में रियासत के माउथ पीस हो, जो रियासत के गीत गाएं। अवाम भूखे भी मर रहे हों तो जो लिखें कि जो तस्वीरें छापें कि काबुल में खातून बिस्किट खा रही थी तो इसका मतलब है हालात नॉर्मल हैं। ये वाली सहाफ़त इस मुल्क में मांगी जा रही है। ठीक। तो उसी सोच के तहत ये PMDA लाया जा रहा है। सर, ये हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा था कि पूरे मुल्क दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सहाफ़ी ज़्यादा आज़ाद हैं, वो ज़्यादा आज़ादी से खबर दे सकते हैं। दूसरी तरफ ये हालात, तो ये क्या पैगाम है बाहर दुनिया के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में इस हुकूमत को अंदाज़ा हो चुका है कि बाहर की दुनिया में इनकी कोई वर्थ नहीं है। अच्छा। तो इनको नहीं मैटर करता कि क्या पैगाम जाएगा, क्या आलमी बरादरी मज़ीद इनको जिसे कहते हैं वो थू करेगी इनके ऊपर। अब देखिए ना, क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म की औकात है। बाइडन ने आज तक कॉल नहीं की, हालांकि उन्होंने सारी फोर्सेस हमारे थ्रू विड्रॉ करनी थी। हम मेन हमारा रोल था उसके अंदर, और कोई नहीं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के सर पे एक हाथ ही फेर देते छोटा सा। हम बेचारे कॉल का इंतज़ार करते करते हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चीखे मारता रह गया कि कॉल नहीं करता वज़ीर-ए-आज़म को, कहता है कि कभी टेक्निकल फॉल्ट के बहाने करता है। मतलब अंदाज़ा करिए कि हमने उनकी इतनी मिन्नतें की कि उन्होंने जान छुड़वाने के लिए कहना शुरू कर दिया और टेक्निकल फॉल्ट से कॉल नहीं मिलती। ये खबर भी आप लोगों ने दी, कोई आपने बनाया कोई बहाना उनके लिए? खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। चलिए सर, तो हम क्या इनको कहें? ठीक है सर। ठीक है सर, ये आपने एक मिसाल दी कि इमरान खान इतने बेबस हैं कि उनके लिए कॉल तक नहीं आ रही है, उनका कॉल तक अटेंड नहीं किया जा रहा, तो फिर इस सारे मामले में उनका कोई किरदार हो सकता है? कोई किरदार है, आप समझते हैं? नहीं, उनका कोई किरदार नहीं है। ये एक ऑफशूट है इस्टेब्लिशमेंट की, उससे ज़्यादा इस हुकूमत की कोई वर्थ नहीं है। ये जो आज इमरान खान साहब या इनके वज़रा रौनक से हम सहाफ़ियों से बात करते हैं, इनका दरअसल मसला ये है कि ये बने हैं शाह के मसाइब, ये बने हैं चीफ़ के मसाइब फिरे हैं तराती, लेकिन इनके 2 साल हुए, इससे ज़्यादा नहीं है। हमने अयूब की आमरीत के 10 साल सेंसरशिप काट लिए थे, हमने ज़िया मरदूद से कोड़े खा के उसकी 11 साल
ये जो लोग पाबंदी लगाते हैं, हम मीर साहब, तलत हुसैन और भी नामे हैं, इन पर इन लोगों ने पाबंदी लगाई। ये लोग औरतों से भी डरते हैं। आप औरतों को कम समझते हैं जो कह रहे हैं, औरतों से भी डरते हैं। औरतें कम नहीं है कि जिनसे ना डरा जाए, औरतों से ज्यादा डरना चाहिए। इस मुल्क में औरतों ने ज्यादा काम किया, लेकिन ये हर उस शख्स से डरते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए और वो सच कहेगा, ये उससे भी डरते हैं, इसलिए कि सच की जो ताकत है उसी से डरा जाता है, उसी से ये डरते हैं। भले वो औरतें हों, भले वो मर्द हों, भले वो बच्चे हों, तो ये सच से डरते हैं। क्योंकि और सच से वो डरता है जो खुद जो है वो सच नहीं कह सकता और उसको सच की ताकत का अंदाजा हो, इसलिए सच से इन रिलीजन से ये मसले हल हो सकते हैं, मुश्किलात कम हो सकती है। मुश्किलात शायद कम नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये पता चलेगा कि आवाज़ तो बुलंद की जा सकती है। और जद्दोजहद करना, आवाज़ बुलंद करना हुसैनियत की निशानी है यजीदियत के खिलाफ। इसलिए जब जब आवाज़ बुलंद होती रहेगी, यजीदियत के लिए बड़ा चैलेंज बनेगी। इसलिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। हो सकता है कम आवाज़ हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो, लेकिन उससे कम से कम ये ज़रूर पता चलेगा कि लोग बोलते हैं, लोग बोल सकते हैं, लोगों के पास ज़ुबानें हैं। ये आप जब आज निकल रहे थे, इससे पहले भी आप लोग प्लान बना रहे थे, इस दौरान इन मुक़्तदर हुकूमतों से जो लोग पाबंदी लगा रहे हैं, इनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, कोई अमल नहीं बना इसके अलावा? मुझे नहीं मालूम, शायद हमारे जो मीडिया के रहनुमा हैं उनके साथ बात हुई हो, लेकिन जाहिर है कि अगर वो करेंगे भी और कानून के बारे में कोई बात करेंगे, उसको वापस लेने की, तो सहाफ़ी तंजीमें बात करेंगी उनसे, अदरवाइज़ तो बात करने का कोई चांस नहीं। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। जनाब, ये आप जानते हैं मतीउल्लाह जान साहब हैं और इनके साथ भी वही हादसा कुछ माह पहले आया था जो असदुर के साथ पेश आया था। सर, जो वाक़या आपके साथ पेश आया था उसका अभी तक भी पता चला नहीं? उसका अभी तक तो किसी को नहीं पता चला। ना वज़ीर दाखिला को पता है, ना वज़ीर आज़म को पता है, ना वज़ीर इत्तलात और नशियात को पता है, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है, ना पुलिस को पता चल रहा है। अच्छा सर, आपने जो वाक़या बयान किया था यूट्यूब पे, पूरा एक मुफस्सिल वीडियो थी, तो बड़ी कर्बनाक थी। उसके बाद ये वही कर्ब है, वही सिलसिला जारी है, कुछ गुजारा हुआ है? नहीं, आप देखें ना, अब गुजारा क्या, एक वाक़या हो गया। अब उसके दो तरीके हैं। वो ये देखते हैं कि बंदा बस चुप करके बैठ जाएगा। अगर मैंने चुप करके बैठना होता तो फिर अपने वीडियो पे सारा आके किस्सा तो ना बयान करता। तो बाद में मैंने तो अपना काम करते रहना है, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं इदारों का एहतराम करता हूँ, फ़ौज का एहतराम करता हूँ, अदलिया का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो है आमरीत है उसकी मुखालफत करना सहाफ़ियों का फ़र्ज़ है, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि आमरीत की मुखालफत करे, जमहूरियत के हक़ में वो आवाज़ उठाए। तो बतौर सहाफ़ी मैं अपना काम करता रहूँगा और मज़लूम लोगों के लिए आवाज़ भी उठाते रहेंगे। ठीक है सर। ये सवाल है, लोग सोचते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब हो गए, अहमद मीर हो गए, असद हो गए, इनको उन लोगों से क्या मसला है जो इनको उठाते हैं, इन पर पाबंदियाँ लाते हैं, इनको धमकियाँ देते हैं? क्या मसला हो सकता है उन लोगों का आपसे? बस ये हर हुकूमत के अंदर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो आइन और कानून की पासदारी नहीं करते, और वो ये कहते हैं कि अवाम और मीडिया हमसे कोई जवाबदेही ना करे, कोई सवाल ना करे। तो ये झूठे आइन पे हलफ उठाते हैं, आइन के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, जमहूरियत के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, और ये अवामी वसाइल पर जो है डाका डालते हैं और फिर ये तवक्को करते हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो अपना मुँह बंद रखें, कोई सवाल न करें, और जो ख़ासकर जो सिविलियन हुकूमत है ये उसको कमज़ोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। सर हम कलमा ला इलाहा वाली इमारत के सामने बिल्कुल मौजूद हैं। यहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो कानून बनाते हैं, ज़िम्मेदार लोग होते हैं। आप तकरीबन कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं, कोई आया है, कोई वज़ीर, कोई एमएन है, दीगर लोग आपसे ज़ाहिर यकजहती करने? बहरहाल कोई फ़िक्र है आपकी? देखिए, आते तो हैं लोग, आ भी जाते हैं। प्रेस क्लब में अभी आए, वो शायद खकान साहब आए, मरियम औरंगज़ेब आई, शाज़िया मरी आई, और फिर दूसरे जो सियासी सियासतदान आए, उन्होंने हज़ारी यकजहती तो किया है। बट जैसे भी है, हमें इनकी सपोर्ट तो चाहिए ना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सियासतदान हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हम सहाफ़ियों का और आवाम का काम है कि हम इनका गिरबान पकड़ें। हम किसी और को इनका गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। हुकूमत का क्या रवैया रहा अब तक?
हुकूमत तो जिनकी है वो आपको पता है, वो तो बंदूक की ज़बान बोलते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक। तो इस हुकूमत का क्या, ये तो हुकूमत तो जिनकी है वो उनकी तो नहीं है। ठीक सर, आखिरी सवाल ये कि ये जो हालात आप दिख रहे हैं, क्या ये सहाफ़ियों पर ये जो मुश्किलात हैं इनमें आसानी ला सकेगी? कौन, ये हुकूमत? नहीं सर, ये हालात जो आप सहाफ़ी बना रहे हैं, एहतजाज, जरीलियाँ। देखें, एहतजाज करना, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, वो नताइज से मशरूत नहीं होता। ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये थे आपके आवाज़ उठाने वाले इस मुल्क के नामी गिरामी सहाफ़ी जो आज यहाँ पे अपनी कर्ब बताने और हुकूमत की तरफ से इनको जो मुश्किलात दरपेश हैं, इन पर जो पाबंदियाँ लाई जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ ये निकले हैं। तकरीबन मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पे काफ़िले अभी आ रहे हैं और इनका अभी तक मुनज़्ज़म होना बाकी है। ये अभी बड़ी तादाद में जमा होंगे और यहाँ पर रोड पर हामिद मीर साहब, तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान और अबसर आलम लाइव शो करेंगे, आवाम से मुखातिब होंगे। अगरचे इनको टीवी से निकाले गए हैं, लेकिन फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और दूसरे जो सोशल मीडिया ज़राए हैं उनके ज़रिए आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ सही, लेकिन जो मौक़े अभी अवेलेबल हैं, दस्तयाब है, उन मौक़ों से फ़ायदा उठाकर ये अपनी कर्ब, अपनी जो इनकी मुश्किलात हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। ये पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के साथ अटैच सुप्रीम कोर्ट। ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर ये इन्होंने पैगाम दिया कि सहाफ़त पर इंतहाई बड़ी पाबंदियाँ जो सहाफ़त की गले दबाने के मुतरादिफ है वो लाई जा रही हैं और लाई गई हैं। जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है, हामिद मीर की शक्ल में, आसमा शराजी, अबसर आलम की शक्ल में, इन पाबंदियों की वजह से जो यहाँ पर आप जानती है हुक्मरान कौन है, उन लोगों से ये मुत्तफ़िक नहीं हुए या उनकी मर्ज़ी पे ये नहीं चल रहे थे, तो उनको उन पर इनको पाबंदियाँ देकर, इन पर पाबंदियाँ लाकर इनको टीवी चैनल से निकाले गए, इन पर पाबंदियाँ लाई गई। तो ये मुश्किलात हैं इनके, ये शदीद कर्ब से गुज़र रहे हैं, एहतजाज जारी हैं। बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।